Dear students, let us study a new concept, activation energy. Very important concept. According to Arrhenius theory of reaction rates, there exists an energy barrier between reactants and products. Reactants cannot form product unless and until they cross that energy barrier. That is, reactants can form product only if they cross this energy barrier. कहता है ये देखिए बच्चे, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये है बच्चे एनर्जी का एक्सिस, ये एक्सिस, और ये है बच्चे इधर को रिएक्शन ये सपोज करें दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ a product is more stable, less the energy, more the stability. प्रोडक्ट की एनर्जी कम है किससे? रिएक्टेंट, है ना? तो यहां से दिखता कि रिएक्टेंट ने इजिली प्रोडक्ट बना देना चाहिए, और ऐसा होता है। कहता रिएक्टेंट ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाता कि सीधा एनर्जी लूज करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। दिस डज नॉट हैपन। अर्हीनियस थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एनर्जी का बैरियर है, रुकावट जिसको इस एनर्जी बैरियर। जब तक रिएक्टेंट एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी एनर्जी के अलावा, ये उसकी अपनी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली दिस एनर्जी इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा ये एनर्जी इसको एक्वायर करनी पड़ेगी टू रीच द टॉप ऑफ एनर्जी बैरियर, अनलेस एंड अनटिल दे एक्वायर दिस एनर्जी, extra energy over and above their own energy to reach the top of energy barrier, they cannot react to form the product. Their collision cannot be met. कहता जितनी मर्जी collision होती रहे reactant के बीच में, unless and until they acquire such minimum amount of energy which is necessary to cross this energy barrier, they cannot form the product. This minimum amount of extra energy is called activation energy. इसी को कहते हैं क्या? This is called activation. Activation energy. इसको कहते हैं हम बच्चे क्या बच्चे? Activation. अब एक और कंसेप्ट इसमें आएगा, बाद में हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी, ये एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी which reactant molecule must possess, which reactant molecule must possess so that their collisions are effective, so that their collision can result in formation of product. That is called threshold energy. What is activation energy then? Threshold energy minus average energy of reactant. Threshold में से average energy of reactant minus कर दे, we get what? Activation. ये बच्चे, तो हम इसको अब रीड आउट कर लेते हैं। According to Arrhenius, there exists an energy barrier between reactants and product. The reactants can form product only if they cross this energy barrier. The reactants can cross this potential energy barrier by acquiring an extra amount of energy in excess to average energy possessed by them, that is the reactant molecule. अपनी एवरेज एनर्जी के अलावा उनको और एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी so that they can react to form the product. This extra amount of energy is called as activation energy. लेकिन एक चीज याद रखना, मिनिमम वर्ड यूज करना डेफिनेशन में, क्योंकि इससे ज्यादा जितनी मर्जी एक्वायर कर ले, रिएक्ट तो उसने कर जाना, पर दैट इज नॉट
पार्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए उसको इतनी ही एनर्जी चाहिए, इससे एक्सरसाइज जितनी मर्जी करे। उसको 2 किलो जूल चाहिए, आप उसको 5 किलो जूल दो, 3 किलो जूल तो यूजलेस है ना बच्चे। एक्टिवेशन एनर्जी आप 2 ही कहेंगे, है ना। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, minimum amount of energy over and above the average energy of reactant which reactant molecule must possess so that they can react or collision is called activation। अपनी मिनिमम एनर्जी के अलावा, सॉरी, अपनी एवरेज एनर्जी के अलावा that minimum amount of energy which molecule must acquire so that they can react on collision, है ना, that is called as what? Activation energy। Activation energy is also defined in another way in terms of threshold energy, जो concept मैंने आपको समझाया। Activation energy is defined as minimum amount of extra energy which reactant molecule must absorb so that their energy becomes equal to threshold energy। Minimum amount of extra energy over and above their own energy, extra energy which reactant molecule must acquire, must absorb so that their energy becomes equal to threshold energy। I was now say minimum amount of extra energy over and above their own energy which reactant molecule must absorb so that their energy become equal to threshold energy। What is threshold energy? Threshold energy is the minimum energy which reactant molecule must possess, minimum energy which reactant molecule must possess so that their collisions are effective। जब हम कहते हैं मस्ट पोजेस तो इसमें दोनों आ गई बच्चे, अपनी उसकी एवरेज एनर्जी भी आ गई और एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सो दैट कोलिजन बिटवीन देम आर इफेक्टिव। इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहा है, इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव कोलिजंस आर दोज व्हिच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मॉलिक्यूल कोलाइड किए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, दैट कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। कोलाइड किए, प्रोडक्ट बना, दैट इज इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होगी बच्चे? वही कोलिजन इफेक्टिव मानी जाएगी जिसमें रिएक्टेंट अब कोलाइड करे, टक्कर खाए, प्रोडक्ट बन जाए, है ना। और वही कोलिजन इफेक्टिव होती जिसमें मॉलिक्यूल के पास क्या होती बच्चे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या है बच्चे? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी से एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दें, है ना, we get the activation energy। ठीक है बच्चे? Reactants can form product only by acquiring extra energy called activation energy। अब क्लियर हो गया हमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता, तभी बना सकता जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर करे, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट है, ये बच्चे प्रोडक्ट है ना। ऐसे दिखता है कि रिएक्टेंट ने इजीली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्यों? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, स्टेबल है, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ऐसे आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। Unless and until we provided the minimum amount of energy so that its energy become equal to threshold energy, minimum amount of extra energy so that its energy become equal to threshold energy, तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा। And that extra energy which we provide over and above their own energy is called activation energy। जब हम मॉलिक्यूल को कहता है एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, तब मॉलिक्यूल बिकम एक्टिवेटेड and react to form highly energetic transition state called activated complex। Activated complex कहाँ बनता है? At the top of energy barrier। When we provide the activation energy, activation energy कैसे प्रोवाइड करेंगे? By heating, टेम्परेचर देके एनर्जी बढ़ानी ना उसकी, we provide the temperature। ठीक है, तो कहता है जब हम मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, व्हाट विल हैपन? They get activated and form highly energetic transition state, highly energetic transition state, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ बनता है? एट द टॉप ऑफ एनर्जी बैरियर, यहाँ बनता है। व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज दैट इन व्हिच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। जैसे AA प्लस BB, ये रिएक्टेंट्स है हमारे, हमने इनको दे दी क्या बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी।
एवरेज वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा था, टू टाइप ऑफ रिएक्टेंट दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, हमने उनका एवरेज ले लिया। इवन के विद इन द सेम रिएक्टेंट सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होगी, है ना, ठीक है ना। कुछ हाई टेम्परेचर, कुछ ने ज्यादा टेम्परेचर एनर्जी अब्जॉर्ब की, उनकी टेम्परेचर से कुछ ने कम। जैसे आप वाटर को ले लें, आप वाटर को रख दें कंटेनर में, तो क्या सारे मॉलिक्यूल उसके एकदम पेपर बनाते हैं ना? ओनली दोज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनकी एनर्जी क्या बच्चे एक लेवल को क्रॉस कर जाती है, सारे एकदम से नहीं बनाते, ठीक है। तो एक सिस्टम के अंदर सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी बराबर नहीं होती, है ना। तो एवरेज एनर्जी वर्ड हमने यूज किया इसलिए रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट ए बी बी, ये बनाया बच्चे एक्टिवेट, हमने इनको दे दी एक्टिवेशन एनर्जी। आफ्टर एक्वायरिंग एक्टिवेशन एनर्जी दे फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ए बी बी के बीच में देखें ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे एंड न्यू बॉन्ड्स बिटवीन ए बी फॉर्म हो रहा। अल्टीमेटली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बच्चे डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने दिखाया हुआ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चे। यहाँ पे जो EA है ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से लेके यहां तक दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मैंने यहां समझा दिया, ये आ गया। उसके बाद बच्चे ये हमने why some reactions are exothermic, why some reactions are endothermic, that can also be explained on the basis of क्या बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट, इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट अस हैव फिगर 1, फिगर 1 को देखते हैं। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है किससे, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा बच्चे टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे जिसको हम ई अब्सॉर्ब करेगा, बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इट डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जब इसने प्रोडक्ट बनाना, इसने एनर्जी रिलीज कर, इट हैज टू रिलीज द एनर्जी टू रीच द प्रोडक्ट लेवल, एनर्जी रिलीज कर। The energy released is the activation energy is equal to the activation energy of product। ये बच्चे अगर मतलब प्रोडक्ट ने वापस जाना होगा रिएक्टेंट में तो इसको इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने प्रोडक्ट बनाया तो उसने इतनी एनर्जी रिलीज की। डायग्राम से साफ दिख रहा है बच्चे, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज क्या बच्चे देखिए लेस, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर। अब्सॉर्ब्ड इज लेस, रिलीज्ड इज मोर, रिलीज ज्यादा हुई है। And this reaction is what? Exothermic. Exothermic reaction कब होता? When average energy of reactant is more than average energy of product, and it can be clearly explained with the help of what? Activation energy concept. बड़ी आसानी से इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। तो in the above figures, ER is energy of reactant, average energy of reactant. EP is ये जो figures हैं, इसमें EP is the average energy of product. A star is the activated complex, A star activated complex, ठीक है। Difference in the energy of reactant and activated complex represent activation energy of reactant EA। Activated complex और average energy of reactant के बीच में जो difference of energy है ये that is called average, that is called activation energy of क्या बच्चे reactant represented by EA, ठीक है। Similarly EB is the activation energy of product। आप सोचते होंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का कांसेप्ट क्या है, मैंने पहले बता दिया। इफ द प्रोडक्ट हैज टू फॉर्म द रिएक्टेंट बैक इट हैज टू अब्सॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल उसमें दोनों साइड रिएक्शन चलते हैं ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट बनाना है तो उसको भी एक्टिवेट होना है एंड दिस हैज टू अब्सॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वापस जाने के लिए, ठीक है बच्चे। अब आगे देखिए, as it is clear from figure 1, figure 1 की बात कर रहा है, the energy ER is greater than EP, मतलब average energy of reactant is more than average energy of product and reaction is exothermic. The energy of product EP is greater than in figure 2। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सोथर्मिक क्यों हुआ ये, है ना।
कि एनर्जी, क्योंकि एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है बच्चे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से, इसलिए इसको कम एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ी टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट में आया, मोर एनर्जी हैज बीन रिलीज, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज लेस, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर, हेंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब फिगर 2 की बात कर रहा हूं। फिगर 2 में क्या है बच्चे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इट रिक्वायर मोर एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज मोर एंड एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। जब ये रिएक्टेंट एक्टिवेट हुआ तो एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो देखें बच्चे ज्यादा है, और जब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ने प्रोडक्ट बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज लेस, absorbed is more, released is less, so this reaction is what endothermic है ना। तो in figure 2 the energy of product EP average energy of product is greater than energy of reactant ER, therefore reaction is endothermic। each reaction has a definite value of activation energy। एक और चीज इंपॉर्टेंट अभी यहाँ बता रहा है, आपके दिमाग में आता है why some reactions are slow, why some reactions are fast। इसमें बच्चे सिंपल तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी का कांसेप्ट लगा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन है बच्चे ये, और एक रिएक्शन है बच्चे ये। इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर, व्हिच रिएक्शन विल बी फास्ट, व्हिच विल बी स्लो, दिस रिएक्शन विल बी फास्ट, दिस रिएक्शन विल बी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर इवन एट लो टेंपरेचर। क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो लेस एंड लेस रिएक्टेंट विल बी एबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एट लो टेंपरेचर, बट टेंपरेचर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, so this reaction will be very slow। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर डिसाइड करेगा कि whether the reaction is fast or slow। तो हम कह सकते if activation energy of reaction is low then large number of molecule can have the energy and hence such reaction will proceed at faster rate। जैसे बच्चे combination of NO and O2 to form nitrogen dioxide, इसकी low activation energy है, this reaction is very fast। On the other hand, if activation energy of reaction is very high then rate of reaction will be slow। For example, combination of carbon monoxide and oxygen NOO2 COO2 दिखने में एक जैसे दिखते हैं, but this reaction is very slow because its activation energy is very high। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चे ये साइड पे लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहता है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब हम कैटलिस्ट डालते हैं किसी भी रिएक्शन में तो रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ जाता है। सपोज करें दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये हमने रिएक्शन किया, दिस इज रिएक्टेंट बच्चे, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कैसे आना चाहिए कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया बच्चे एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे, दिस इज एनर्जी, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, ठीक है, और दिस इज रिएक्शन पाथ, इधर को रिएक्शन चल रहा है बच्चे, रिएक्शन पाथ, ये प्रोडक्ट है बच्चे, याद, ये रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी है, ये है एवरेज एनर्जी ऑफ। अब हमने जब कैटलिस्ट डाला, व्हाट हैपेंड, catalyst provide alternative path with lower energy value, this is the importance of catalyst। this reaction is in the absence of catalyst and this reaction is in the presence of catalyst। catalyst ने alternative रास्ता दिया, catalyst ने क्या किया बच्चे, catalyst provide alternative path with lower energy barrier, lower energy barrier मतलब more and more reactants can cross this energy barrier even at low temperature, लो एनर्जी बैरियर, रिएक्शन बिकम फास्ट, रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन विद लो एनर्जी बैरियर
This low activation energy is required in presence of catalyst and hence reaction rate increase. Reaction rate बढ़ जाएगा. मैंने पहले ही बताया कि जब reactivation energy लो होती है reaction fast होता है. एक और important concept है kinetic stability of fuel. Kinetic stability of fuel. ये क्या concept है? देखें जो fuels है हमारे जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनका जो combustion है उसमें डेल्टा जी नेगेटिव है. डेल्टा जी नेगेटिव है. जो फ्यूल्स है हमारी एलपीजी है, फॉर देम डेल्टा जी इज नेगेटिव. कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स इज नेगेटिव. कोयले को ले ले, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स कह रही है these processes are feasible, spontaneous, feasible. डेल्टा जी नेगेटिव हो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से these are feasible reactions होने चाहिए. फिर भी हम इनको एयर में रख दें. Why the reaction does not occur? जैसे कोयले को रख दिया एयर में, एयर में ऑक्सीजन है, रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि इन रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव है. Then why coal is not burning automatically in air when we placed in air? तो इसका सिंपल कंसेप्ट है बच्चे कि कोयले को जलने के लिए क्या चाहिए बच्चे? पहले इनको रिएक्ट करने के लिए पहले क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे देते? माचिस तीली से जला के हीट देते, टेम्परेचर. वंस द रिएक्शन स्टार्ट इट प्रोसीड्स ऑन. ये बात समझ बच्चे? जैसे आप गैस का जो हमारा नॉब है उसको ओपन करते, गैस रिलीज होती सिलेंडर, आपके सिलेंडर, ठीक है? आपने बर्नर का नॉब ओपन किया, गैस वहां से रिलीज हुई. कि जब तक आप उसको इग्नाइट नहीं करते तब तक वो गैस बर्न नहीं करती. इग्नाइट करने का मतलब आपने उसको क्या दी बच्चे? एक्टिवेशन एनर्जी. इनिशिएट कर दिया प्रोसेस, देन इट बर्न स्पॉन्टेनियसली. एक बार एक मॉलिक्यूल उसका जला, फ्यू मॉलिक्यूल उसके बर्न किए, उनके बर्न से जो एनर्जी निकली उन्होंने पास वाले मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, उन्होंने फिर आगे दे दी एंड प्रोसेस गोज ऑन. तो फिर वो कंटिन्यूसली जलती रहती है ना. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन व्हाई फ्यूल्स आर स्टेबल in spite of fact that delta G for them is negative. Why they are stable in air, oxygen? ठीक है? तो combustion of fuels like coal in presence of air or oxygen is thermodynamically feasible because delta G is negative. Jet fuels are quite stable even in presence of air or oxygen. This is because the activation energy of combustion reaction is very high. On applying flame to the fuel, जब flame देते fuel को, the part of the fuel and air in contact with the flame absorb heat which provide necessary activation energy and combustion starts. Thus fuels which are thermodynamically unstable are kinetically stable. Thermodynamics के हिसाब से क्या है बच्चे? Unstable. Kinetics के हिसाब से क्या है? Stable. Because there is energy barrier between the reactant and the product. Unless and until we provide the activation energy to the reactants, they will not react to form the product. अब ये अलग बात है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या बच्चे? लो होगी, उसका रिएक्शन क्या होगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उसका फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन. जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे हाई होगी, जैसे ये देखा आपने, उसका रिएक्शन रेट क्या होगा? स्लो होगा, है ना. क्योंकि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए वी नीड मोर टेम्परेचर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग दिस एनर्जी बैरियर भी कम होगा. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग दिस एनर्जी बैरियर क्या होगा? ज्यादा होगा. मोर एंड मोर मॉलिक्यूल कैन क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर बिकॉज दिस एनर्जी बैरियर इज स्मॉल. होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे एंड में एक बार फिर से बोल दूंगा. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. मिनिमम एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट which reactant molecule must acquire, must possess, so that their energy become equal to threshold energy, so that they can react on collision. That is called as what? Activation